Erling Haaland roared back to his best form with a 5-goal salvo as Manchester City thumped Luton Town 6-2 at Kenilworth Road to reach the quarter-finals of the FA Cup on Tuesday. Erling Haaland roared back to his best form with a 5-goal salvo as Manchester City thumped Luton Town 6-2 at Kenilworth Road to reach the quarter-finals of the FA Cup on Tuesday. Luton had no answer to the marauding Norwegian, who bagged his 8th City hat-trick before half-time and then scored twice more after the break to kill off a stirring Luton revival. The 23-year-old Haaland's first 4 goals were all created by Kevin De Bruyne. Mateo Kovacic also got on the scoresheet for Holders City, who are unbeaten in 18 games in all competitions. एर्लिंग हालैंड ने 5 गोल के साथ अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में वापसी की, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी ने मंगलवार को केनिलवर्थ रोड पर ल्यूटन टाउन को 6-2 से हराकर एफए कप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। एर्लिंग हालैंड ने 5 गोल के साथ अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में वापसी की, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी ने मंगलवार को केनिलवर्थ रोड पर ल्यूटन टाउन को 6-2 से हराकर एफए कप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। ल्यूटन के पास क्रूर नॉर्वेजियन का कोई जवाब नहीं था, जिसने हाफ टाइम से पहले अपनी 8वीं सिटी हैट्रिक हासिल की और फिर ब्रेक के बाद 2 बार और गोल करके ल्यूटन के उत्साह को खत्म कर दिया। 23 वर्षीय हैलैंड के पहले 4 गोल केविन डी ब्रुने द्वारा बनाए गए थे। माटेओ कोवासिक भी होल्डर्स सिटी के लिए स्कोरशीट में शामिल हो गए, जो सभी प्रतियोगिताओं में 18 खेलों में अजेय हैं। Luton did threaten an unlikely comeback when Jordan Clark found the top corner with a sublime effort on the stroke of half-time and netted again early in the second half to make it 3-2. But a strong City side instantly found another gear to cruise into the hat for the last 8. Haaland became the first top-flight player to score 5 goals in an FA Cup tie since George Best struck 6 for Manchester United against Northampton Town in 1970. The only blemish for City, who faces Manchester United in the Premier League on Sunday, was an injury to Jack Grealish, who was forced off in the opening period. Haaland had scored only 5 goals in his previous 11 appearances for City, a spell interrupted by a foot injury that some suggested had taken the edge off his game. But he answered any doubters in emphatic fashion with a sensational display of centre-forward play. City meant business from the start and went ahead in the 4th minute as Matheus Nunes played in De Bruyne, who cut back a perfect pass for Haaland to fire past Tim Krul. De Bruyne played Haaland through in the 18th minute to make it 2-0, and Haaland's hat-trick goal was almost a carbon copy as he again surged onto a De Bruyne pass to dink a shot over Krul. Clark gave the home fans some cheer when he curled a perfect shot past Stefan Ortega, and Luton punished City for some slack defending just after the restart, with Clark finishing well. But Haaland tapped in a De Bruyne pass a couple of minutes later and then grabbed his 5th from Bernardo Silva's assist before being substituted, much to Luton's relief. Second-tier leaders Leicester City joined Pep Guardiola's side in the quarter-finals as it beat Premier League Bournemouth 1-0. Luton, England. Erling Haaland roared back to his best form with a 5-goal salvo as Manchester City thumped Luton Town 6-2 at Kenilworth Road to reach the quarter-finals of the FA Cup on Tuesday. Luton had no answer to the marauding Norwegian, who bagged his 8th City hat-trick before half-time and then scored twice more after the break to kill off a stirring Luton revival. The 23-year-old Haaland's first 4 goals were all created by Kevin De Bruyne. Mateo Kovacic also got on the scoresheet for Holders City, who are unbeaten in 18 games in all competitive. Luton did threaten an unlikely comeback when Jordan Clark found the top corner with a sublime effort on the stroke of half-time and netted again early in the second half to make it 3-2. But a strong City side instantly found another gear to cruise into the hat for the last 8. The only blemish for City, who face Manchester United in the Premier League on Sunday, was an injury to Jack Grealish, who was forced off in the opening period. ल्यूटन ने एक अप्रत्याशित वापसी की धमकी दी जब जॉर्डन क्लार्क ने हाफ टाइम के स्ट्रोक पर शानदार प्रयास के साथ शीर्ष कोने को पाया और दूसरे हाफ की शुरुआत में फिर से गोल करके स्कोर 3-2 कर दिया। लेकिन सिटी की एक मजबूत टीम को अंतिम 8 में जगह बनाने के लिए तुरंत एक और गियर मिल गया। 1970 में नॉर्थम्पटन टाउन के खिलाफ मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए जॉर्ज बेस्ट के 6 गोल के बाद हालैंड एफए कप मुकाबले में 5 गोल करने वाले पहले शीर्ष खिलाड़ी बन गए। रविवार को प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड का सामना करने वाले सिटी के लिए एकमात्र दोष जैक ग्रीलिश की चोट थी, जिन्हें शुरुआती दौर में बाहर होना पड़ा। हालैंड ने सिटी के लिए अपने पिछले 11 मैचों में केवल 5 गोल किए थे। पैर की चोट के कारण बाधित एक स्पेल के कारण कुछ लोगों का मानना था कि इससे उनके खेल में बढ़त
कम हो गई थी, लेकिन उन्होंने सेंटर फॉरवर्ड खेल के सनसनीखेज प्रदर्शन के साथ किसी भी संदेह करने वाले को जोरदार तरीके से जवाब दिया। सिटी ने शुरू से ही अच्छा प्रदर्शन करना चाहा और चौथे मिनट में आगे बढ़ गई, क्योंकि मैथ्यूस नून्स ने डी ब्रूने में खेला, जिन्होंने टिम क्रूल को छकाने के लिए हालैंड के लिए एक सही पास दिया। डी ब्रूने ने 18वें मिनट में हैलैंड को 2-0 से आगे कर दिया और हैलैंड का हैट्रिक गोल लगभग कार्बन कॉपी था, क्योंकि वह फिर से डी ब्रूने के पास पर क्रूल पर शॉट मारने के लिए आगे बढ़ा। क्लार्क ने घरेलू प्रशंसकों को कुछ खुशी दी जब उन्होंने स्टीफन ओर्टेगा को छकाते हुए एक सटीक शॉट लगाया और ल्यूटन ने क्लार्क के अच्छे प्रदर्शन के साथ फिर से शुरू होने के तुरंत बाद सिटी को कुछ ढीले बचाव के लिए दंडित किया, लेकिन हालैंड ने कुछ मिनट बाद डी ब्रुइन पास को टैप किया और फिर स्थानापन्न होने से पहले बर्नार्डो सिल्वा की सहायता से अपना 5वां पास हासिल किया, जिससे ल्यूटन को काफी राहत मिली। दूसरे स्तर के नेता लीसेस्टर सिटी क्वार्टर फाइनल में पेप गार्डियोला के पक्ष में शामिल हो गए, क्योंकि उन्होंने प्रीमियर लीग बोर्नमाउथ को 1-0 से हराया। ल्यूटन, इंग्लैंड। एर्लिंग हालैंड ने 5 गोल के साथ अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में वापसी की, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी ने मंगलवार को केनिलवर्थ रोड पर ल्यूटन टाउन को 6-2 से हराकर एफए कप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। ल्यूटन के पास क्रू नॉर्वेजियन का कोई जवाब नहीं था, जिसने हाफ टाइम से पहले अपनी 8वीं सिटी हैट्रिक हासिल की और फिर ब्रेक के बाद 2 बार और गोल करके ल्यूटन के उत्साह को खत्म कर दिया। 23 वर्षीय हालैंड के पहले 4 गोल केविन डी ब्रूने द्वारा बनाए गए थे। सिटी होल्डर्स के लिए माटेओ कोवासिक भी स्कोरशीट में शामिल हो गए, जो सभी प्रतिस्पर्धी मैचों में 18 मैचों से अजेय है। ल्यूटन ने एक अप्रत्याशित वापसी की धमकी दी जब जॉर्डन क्लार्क ने हाफ टाइम के स्ट्रोक पर शानदार प्रयास के साथ शीर्ष कोने को पाया और दूसरे हाफ की शुरुआत में फिर से गोल करके स्कोर 3-2 कर दिया, लेकिन सिटी की एक मजबूत टीम को अंतिम 8 में जगह बनाने के लिए तुरंत एक और गियर मिल गया। रविवार को प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड का सामना करने वाले सिटी के लिए एकमात्र दोष जैक ग्रिलिश की चोट थी, जिन्हें शुरुआती दौर में बाहर होना पड़ा।